Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chindwara. Today I am here along with the third part of kinship, caste and class. Dear students, today we will understand about the beyond the birth, resources and status, gender and access to property, varnas, access to property. We will see about an alternative social scenario, sharing wealth. We will learn here about a social contract. We will learn here about historians and the Mahabharata. We will see the excavation work of Hastinapur. We will see about the polyandry marriage in Mahabharata and Mahabharata as a dynamic text. The first part of this video is related to beyond birth, resources and status. Dear students, we have seen economic strength, which always plays a very important role in society. The social position of different sections were often shaped by their access to economic resources. Here, we will know about the criteria of which property was granted. Number 1, on the basis of gender and on the basis of वर्ण. हम इसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टी को गेन किया जाता था या प्रॉपर्टी दी जाती थी. जेंडर बेस पर भी समझने की कोशिश करेंगे और वर्ण के आधार पर भी. फर्स्ट वन इज जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी. डियर स्टूडेंट्स, धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास also tell us the issue of ownership, which is described through different stories. Students, according to the Manusmriti, the paternal estate was to be divided equally amongst sons after the death of their parents, and special share for the eldest son. Another one rule was that women could not claim a share of these resources. बेटा, जितने भी बच्चे होते थे, जितने भी भाई होते थे, उनमें जो सबसे एल्डेस्ट सन होता था उसके लिए एक स्पेशल शेयर रखा जाता था, उसको स्पेशल शेयर प्रोवाइड किया जाता था. और जो वीमेन होती थी वो उस प्रॉपर्टी या उस रिसोर्सेस में किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकती थी. हाउएवर वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज अ स्त्री धन. स्त्री धन के नाम पर वुमेन अपने पास कुछ धन संपत्ति या गिफ्ट के तौर पर मिली हुई चीज़ों को रख सकती थी. जब उनका विवाह होता था तब उन्हें गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें मिल जाती थी, वो स्त्री धन के नाम पर वो अपने पास रख सकती थी. दिस प्रॉपर्टी कुड बी टेकिंग ओवर बाय देयर चिल्ड्रन एंड देयर वॉज नो क्लेम ऑफ हर हस्बैंड ऑन इट. एट द सेम टाइम द मनुस्मृति वार्नड women against hoarding family property or even their own valuables विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन. मनुस्मृति इसी समय इस बात को लेकर के भी वार्न करती है कि कोई भी स्त्री अपने पति की अनुमति के बिना मूल्यवान धन का संग्रह नहीं कर सकती है. स्टूडेंट्स, यू मे सी वन साइड मनुस्मृति अलाउड वुमेन टू होल्ड स्त्री धन एंड सेकेंड साइड अनदर साइड इट वार्न टू वुमेन अगेंस्ट स्टॉक पाइल ऑफ प्रॉपर्टी. These rules were forcefully implemented on common women, but we have information about wealthy women also. As per epigraphic and textual records, upper class women may have had access to resources. We can see an example of the Vakatak queen Prabhavati Gupta. Generally, land, cattle, and money were controlled by men, and in other words, social differences between men and women was sharpened because of the differences in access to resources. Now in next slide, according to the Brahmanical text, another criterion for regulating access to wealth was varna. As we saw earlier, the only occupation prescribed for Shudras was servitude, while there were a variety of occupations for men of the first three varnas.
शूद्रा के लिए क्या था? शूद्र के लिए कि वो अपने से ऊपर के जो 3 वर्ण के लोग हैं उनकी सेवाएं करे, बाकी जो नेक्स्ट वर्ण को बिलोंग करने वाले लोग थे उनके लिए वेराइटीज़ ऑफ ऑक्यूपेशंस वहाँ रखे हुए थे, लेकिन शूद्रास के साथ केवल एक ही था कि वो अपने से ऊपर के वर्ण के लोगों की केवल सेवा कर सके. इफ these provisions were actually implemented in society, the wealthiest men would have been the Brahmins and the Kshatriyas. जो सोशल ऑर्डर तैयार हुआ था उस सोशल ऑर्डर में जो वेल्दियस्ट पर्सन थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे. एंड आई होप यू हैव सीन इन डिफरेंट स्टोरीज और मूवीज, kings are almost invariably depicted as wealthy. Priests are also generally shown to be rich, though there are occasional depictions of the poor Brahman. कभी कभार कहीं कोई दिखाई दे जाता था कि कोई ब्राह्मण गरीब है, अन्यथा ज़्यादातर कहानियों में और चरित्रों में यह देखा गया है कि किंग, राजा और ब्राह्मण या प्रिस्ट, पुजारी हमेशा से ही धनवान दिखाई गए हैं. बुद्धिज्म रिकॉग्नाइज्ड that division of society is prevalent in society, but did not regard these as natural or inflexible. Other traditions like Buddhism developed critiques of the Varnas order, which was described in Dharma Sutras and Dharma Shastras. Buddhism recognized that division of society is prevalent in society, but did not regard this as natural or inflexible. They also rejected the idea of claims to status on the basis of birth. In next, an alternative social scenario, sharing wealth. Dear students, we have been examining situations where people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth. They received or opted their status on the basis of their wealth. हमने ज़्यादातर जगहों पर देखा है कि अपने धन के आधार पर लोग अपने स्टेटस को पा लेते हैं. ठीक है, संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का वो दावा भी करते हैं, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी होती है. वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता है, वहीं जो मिजरली या कृपण व्यक्ति होता है वो हमेशा से संपत्ति का संग्रह करता है, और जो व्यक्ति संपत्ति का संग्रह करता है वो हमेशा घृणा का पात्र भी होता है. लेकिन दान देने वाले व्यक्ति के प्रति हमेशा हमारे मन में एक सम्मान की भावना होती है. ओके, वन एरिया वेयर these values were cherished was ancient तमिलकम. तमिलकम एक ऐसी जगह थी, तमिलकम एक ऐसा क्षेत्र था जहां इस तरह के पात्रों को, इस तरह के आदर्शों को संजोया जाता था. द चीफ्स तमिलकम, ओके, देयर वर सेवरल चिफडम्स अराउंड 2000 ईयर्स एगो. यहाँ पर करीब 2000 साल के पहले लगभग बहुत सारी सरदारियाँ हुआ करती थी. द चीफ्स वर patrons of bards and poets who sang their praise. Poems included in Tamil Sangam anthology often light up social and economic relationships, suggesting that while there were differences between rich and poor, those who controlled resources were also expected to share them. ये कहा जाता था तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह में कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों का चित्रण तो अच्छी बात है ही है, लेकिन जो धनी और गरीब के बीच की विषमताएं हैं और जिन लोगों के पास में इन संसाधनों का नियंत्रण है, तो उन लोगों को ये सब चीज़ों को मिल बांट करके उपयोग में लाना चाहिए. ये शेयरिंग वेल्थ को इंडिकेट करता हुआ एक एग्जाम्पल है तमिलकम क्षेत्र का. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. हम यहाँ एक सामाजिक अनुबंध को जानने की कोशिश करते हैं. थ्रू दिस कंटेंट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट. फॉर इंस्टेंस, इफ ह्यूमन बीइंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम, दे कुड आल्सो चेंज इट इन द फ्यूचर. अगर एक व्यक्ति ही किसी व्यवस्था को सुधार करने के लिए जिम्मेदार है, तो वो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को संचालित कर सकता है. कैसे? हाउ? The Buddhist text also developed another example to explain, to create an understanding of social inequality, as well as it puts its views
which were required to regulate social conflict in institutions. Okay, we will try to understand through Sutta Pitak. There is an example given by the Sutta Pitak. Sutta Pitak suggested that originally human being did not have fully evolved, nor was the world of plant fully developed. ये कहता है कि न तो मनुष्य पूरी तरह विकसित था और न ही प्लांट्स पूरी तरह से विकसित थे. ऑल बीइंग लिव्ड इन एन इडलिक स्टेट ऑफ पीस. सभी लोग शांति भाव से, स्थायी भाव से रहते थे. टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली वाट दे नीडेड फॉर ईच मील. अपने भोजन की जितनी व्यवस्था की ज़रूरत होती थी उतना ही नेचर से लेते थे. However, there was a gradual decline of this state as human beings became increasingly greedy. जैसे जैसे समय बीतता गया मानव जो है वो ग्रीडी होता गया, रिवेंजफुल होता गया, डिसऑनेस्ट होता गया. ओके, देयर इज अ वर्ड महासम्मत. when the people have authority to choose their king, okay, after the election of king, he will be known as a Mahasammat. Okay, Mahasammat, the great elect. अगर जनता अपने राजा को चुन लिया करती थी, चुनती थी, तो उस सब लोगों के द्वारा चुने जाने के कारण उस राजा को महासम्मत की उपाधि दे दी जाती थी. This suggests that the institution of kinship was based on human choice. Okay, इससे हमें ये पता चलता है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो मानवीय इच्छा के आधार पर चलते थे. In next slide, we will learn about the historians and the Mahabharata. Dear students, historian consider several elements when they analyze text. They examine the language of text. जब historian किसी टेक्स्ट को एनालाइज करता है तो किन किन चीज़ों को वो चेक करता है, वो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए. They examine the language of text, whether text were written in Prakrit, Pali or Tamil. These three languages are probably used by ordinary people. ये प्राकृत, पाली और तमिल जो लैंग्वेज है वो ऑर्डनरी पीपल के थ्रू के द्वारा बोली जाती थी. और इन संस्कृत, ये क्या संस्कृत में तो नहीं लिखे गए थे. लैंग्वेज मींट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिस्ट एंड एलिट्स. जो प्रिस्ट और एलिट्स जो उच्च घरानों को बिलोंग करने वाले होते थे, पुजारी वगैरह, सामंत, क्या उन लोगों की इस लैंग्वेज के आधार पर लिखा गया. दे आल्सो कंसिडर द काइंड्स ऑफ टेक्स्ट. वर दिस मंत्रास विच वर लर्नड एंड चैंटेड बाय राइचुअल स्पेशलिस्ट और इन स्टोरीज दैट पीपल कुड हैव रीड और हर्ड. क्या ये किस तरह के टेक्स्ट थे? कई मंत्र के रूप में थे, जिसे राइचुअल स्पेशलिस्ट जो हुआ करते थे वो मंत्रोच्चारण के थ्रू के द्वारा बोला करते थे, या स्टोरी के फॉर्म में होते थे जिसे कि जनता सुन और बोल सकती थी. Besides, they also try to find out about the authors and his perspective and ideas which shaped the text. इसके अलावा लेखक के बारे में भी जानने का प्रयास करते थे, क्योंकि उसके विचार कैसे हो सकते थे, उसका नज़रिया, उस चीज़ को लिखने का नज़रिया कैसा है, उसके नज़रिए के आधार पर ही वो अपने शब्दों को एक शेप देता था. हिस्टोरियंस इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान देते थे. एज वेल एज दे ट्राई टू फाइंड आउट इंटेंडेड ऑडियंस. जनता का जो मन है उसको, श्रोताओं की जो अभिरुचि, उसको भी जानने का वो प्रयास करते थे. ऑथर्स कीप द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस इन माइंड वाइल कंपोजिंग देयर वर्क. है ना, जब ऑडियंस किस तरह की है, वो किस तरह की चीज़ों का इंटरेस्ट लेती है, उस तरह के चीज़ों को लिखने के लिए ऑथर्स जो है उस तरह का ही काम किया करते थे. एंड दे ट्राई टू डू फाइंड आउट डेट ऑफ कंपोजिशन और कंपाइलेशन ऑफ द टेक्स्ट एंड द प्लेस वेयर दे मे हैव बीन कंपोज्ड. वो जगह का जहाँ वो उसको कंपोज करते थे, वो डेट कौन सी थी, उस डेट का, उस तिथि के बारे में वो जानकारी कलेक्ट करते थे. इट इज़ ओनली आफ्टर मेकिंग दिस असेसमेंट्स दैट दे ड्रॉ ऑन द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट टू अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. इन सभी के बाद ही इतिहासकार जो है इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इन सभी कंटेंट्स का इस्तेमाल किया करते थे. As you can imagine, this is particularly difficult task for a text as complex as the महाभारत. तो अब हम समझ सकते हैं कि महाभारत जैसे विशाल और जो जटिल ग्रंथ थे, उनको उनके उस संदर्भ में उसको कलेक्शन करना,
उसका कंपोजिशन करना कितना कठिन कार्य रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ महाभारत। डियर स्टूडेंट्स, द वर्जन ऑफ महाभारत considering is in Sanskrit. The Sanskrit which is used in the Mahabharata is far simpler than that of the Vedas or of the Prashastis. संस्कृत में महाभारत को जो संस्कृत में लिखा गया और इसमें उस स्तर की संस्कृत का इस्तेमाल किया गया था जो सामान्य तौर पर समझी जा सकती थी। उस संस्कृत का इस्तेमाल किया गया जो वेद और प्रशस्ति के लिए उपयोग में की गई उससे सिंपल, ताकि लोगों को आसानी से वो समझ में आ सके। सो वी होप इट वाज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि महाभारत को ज़्यादातर लोगों ने समझा कि ये जो कथा है, ये कहानी है, ये किस तरह की है। डियर चिल्ड्रन, इट वाज प्रोबेबली बेटर टू अंडरस्टूड the present text classified into two sections, one that contains stories designated as the narrative, okay, दो सेक्शन में बटा था, and other section containing prescriptions about social norms known as didactic. This section includes stories and narratives containing social messages. In next slide, dear students, the question is that who wrote this text? This is a question to which there are several answers. Probably the original story was composed by charioteers, bards, which were known as Suits. Generally, they go along with Kshatriya warrior to the battlefield and compose poems celebrating their victories and other achievements. ये सूत जो हुआ करते थे, चार भाट कहा जाता था, ये अपने राजा महाराजाओं के साथ युद्ध के मैदान में जाते थे और अपने राजा के युद्ध के मैदान में उनसे उसके लड़ते हुए उसकी प्रशंसा करते थे, उसमें जोश और उत्साह का संचार करते थे, जिसके आधार पर वो युद्ध के क्षेत्र में और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। दिस कंपोजिशन सर्कुलेटेड ओरली, ये मौखिक तौर पर कंपोजिशन किया गया था। देन फ्रॉम द 5th century BC ब्राह्मण्स टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगेन टू राइट इट। 5th BC के आसपास से ब्राह्मणों ने इस पर एकाधिकार कर लिया और इस पर इन्होंने लिखना शुरू किया। द कुरुज एंड पांचाल्स वर द chiefdoms of that time and the story of the epic revolves around them. Gradually these chiefdoms became kingdom. Another phase in the composition of text between 200 BC and 200 CE. This was the period when the worship of Vishnu was growing. ये सेकेंड फेज है बेटा, जो 200 BC से 200 कॉमन एरा के बीच में था, लगभग 400 ईयर्स का ये जो ड्यूरेशन है। इस बीच में विष्णु जी की पूजा लोग करना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिए। एंड कृष्णा वॉज वर्शिप्ड एज अ इनकारनेशन ऑफ विष्णु। कृष्णा वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ द एपिक। आपने देखा होगा महाभारत में कि कृष्ण भगवान का बहुत ही अद्भुत स्वरूप दिखलाया गया है और कृष्ण जी के इर्द गिर्द महाभारत की कथा का बहुत बड़ा हिस्सा घूमता रहता है। Subsequently between 200 and 400 CE, large didactic section resembling the मनुस्मृति were added. फिर देखा गया कि मनुस्मृति की बहुत सारा जो हिस्सा है सीधे के सीधे इस महाभारत के उद्धरण में जोड़ दिया गया। Dear students, with this addition, a text which initially perhaps had less than 10,000 verses grew to comprise about 1 lakh verses. अब जब मनुस्मृति की इतनी सारी ऋचाओं को उसमें जोड़ा जाने लगा, मंत्रों को जोड़ा जाने लगा, तो वहीं जहाँ 10,000 से कम श्लोक हुआ करते थे, वहीं इनके ऐड होने के बाद 1 लाख से ज़्यादा इनके श्लोक हो गए। दिस एनॉर्मस कंपोजिशन इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूट बाय द सागा नेम व्यास। और अगर मैं कहूँ साहित्यिक परंपरा के इस व्रत रचना की रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। Excavation of Hastinapur. Dear students, as per the great and renowned place of the epic Hastinapur, which is situated in Uttar Pradesh, Meerut,
मेरठ के पास है, excavated by archaeologist B.B. Lal in 1951 to 52. A question is rising in our mind that was this Hastinapur of the epic? क्या ये वही हस्तिनापुर है जिसे हम महाभारत में जिसके बारे में नाम सुनते हैं? The location of the site in the upper Ganga Doab where the Kuru kingdom was situated, so it is suggested that it may have been the capital of the Kuru which mentioned in the text. ये एक्सकेवेशन टास्क जो परफॉर्म हुआ या उसकी जो लोकेशन है वो अपर गंगा दोआब के पास है, ठीक, जहाँ पहले कुरु किंगडम सिचुएटेड था, स्थापित था। तो ये संभावना व्यक्त की जाती है कि ये वही हस्तिनापुर है जो कुरु की कैपिटल हुआ करती थी। नाउ विल सी अबाउट द एविडेंस ऑफ 5 occupational levels. B.B. Lal, who excavated Hastinapur in 1951 to 52. Dear students, B.B. Lal found evidences of 5 occupational levels. ये जो हाउस के स्ट्रक्चर हुआ करते थे उससे रिलेटेड इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस किया आफ्टर द एक्सकेवेशन। अमंग देम इन्होंने 5 ऑक्यूपेशनल लेवल को गेन किया, इन्होंने उसको उनके एविडेंस को गेन किया। अमंग देम ओनली सेकेंड एंड थर्ड लेवल वर इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज द हाउस स्ट्रक्चर ऑफ दैट टाइम। B.B. Lal एक्सप्लेन अबाउट द हाउसेस। B.B. Lal ने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया हाउसेस के, मैं अब आपको उसको बतलाता हूँ। विच फाउंड एट सेकेंड लेवल, द ड्यूरेशन ऑफ दैट हाउस was the 12th to 7th century BC, before Common Era. What were the special thing behind it? वहाँ क्या उस स्ट्रक्चर के पीछे कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको जानने की कोशिश कीजिए। एक्सकेवेशन परफॉर्म विद इन लिमिटेड एरिया, ये लिमिटेड एरिया में एक्सकेवेशन हुआ। नो डेफिनेट plans of houses were obtained. No definite plans of houses were obtained. भाई वहाँ के जो घरों का निर्माण हो रहा था, जो हुआ रहा होगा, उस ग्रहों की आवास ग्रहों की कोई निश्चित परियोजना भी नहीं मिलती है। बट वॉल्स ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स वर फाउंड, जो दीवार हैं वो मिट्टी की थी और मिट्टी की जो ईंटें हैं वो वहाँ पर पाई गई है। द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर विथ प्रोमिनेंट रीड मार्क्स, जो सरकंडे की लकड़ियाँ होती है ना, सरकंडे की लकड़ियों के ऊपर में मिट्टी को लेप कर दिया गया था प्लास्टर के तौर पर। इट इज़ सजेस्टेड दैट सम ऑफ द हाउसेज हैड रीड वॉल्स प्लास्टर्ड ओवर विद मड, सरकंडे की लकड़ी के ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया गया, एक प्रकार से उसका प्लास्टर कर दिया गया। And about the third phase, B.B. Lal noted that houses of this period were built of mud bricks as well as burned brick. ठीक, जो घर की कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से बने हुए वहाँ के कुछ घर थे। इसके अलावा उनमें कुछ शोषक घट थे, उसमें कुछ शोषक घट भी मिले थे। सो के जास ब्रिक ड्रेन्स वर यूज फॉर ड्रेनिंग आउट रिफ्यूज वाटर, while terracotta ring well may have been used both as well as and drainage pits. ये बतलाता है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज था वो ईंटों की नालियाँ उससे बनाई गई थी, ईंट से बनाई गई थी, जो गंदे पानी की निकासी के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। Now we have to get an information regarding polyandry marriage in Mahabharata. Draupadi marriage with Pandava was an example of polyandry marriage. Polyandry marriage किसे कहते हैं? बहुपति विवाह, जिसमें एक स्त्री के एक से ज़्यादा पति होते हैं, वो polyandry marriage के कैटेगरी में आता है। The polyandry marriage in Mahabharata suggests different things. ये कुछ अलग चीज़ बताता है। It may be because of the shortage of women due to incessant wars or due to situational crisis, and also that narrative sometimes does not reflect the social realities. इसमें ये बतलाने की कोशिश की गई है कि इस तरह के पॉलिएंड्री मैरिजेस जो है, जो युद्ध हुआ करते थे
और इन युद्ध की वजह से महिलाओं की संख्या में काफ़ी कमी आ गई। अब महिलाओं की संख्या में कमी आ जाने की वजह से बहुपति प्रथा को अपनाया गया युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण से। तो इस तरह के ये जो मैटर्स हैं, ये इस तरह के जो कंटेंट्स हैं हमारे सामने उभर करके आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज महाभारत और डायनामिक टेक्स्ट। Mahabharata was written in variety of languages. Okay, those people who wrote version of the epic added stories originated or circulated in their localities. The central story of the epic was often retold in many ways. Episodes were depicted in sculpture and paintings. They also provided themes for a wide range of performing art, plays, dance, and other kinds of narration. So we can understand through these statements Mahabharata was really a dynamic text. Students, I hope you have understood this presentation, and I suggest you to read this chapter again. You take the help of your note textbook, and definitely you will get maximum information regarding this chapter. Thank you. Thanks for watching this video. Thank you very much.